A very, very, very good morning, everyone. Welcome back on this beautiful journey yet again. Very glad and grateful to be here, to be with all of you, and to begin this day with power. So, welcome. We are beginning a new chapter today. Life follows you. One more lens, one more way to look at how, in each moment, are we co creating with this power? How, in each moment, we are designing our life, and who is really the boss here? So, yes, excited to start this new chapter, to start this new journey. So, let's begin. Life follows you. So, if we actually look at this picture, थोड़ा ऊपर दृष्टि. हाँ, तो बस जहां जहां हम हैं, जो हम चूज कर रहे हैं, जहां जहां हम देख रहे हैं, लाइफ विल फॉलो अस लाइक अ शैडो. जहां भी हम हैं वहां लाइफ है. जो डायरेक्शन में हम देख रहे हैं वो डायरेक्शन में लाइफ अनफोल्ड हो रही है. जहां हम जा रहे हैं लाइफ इज जस्ट टेकिंग इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलोइंग अस. So the chapter का first quote begins with destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. Some way or the other हम यही देखे जा रहे हैं थ्रू आउट दैट हमें लग रहा है चीजें बस हो रही है, चीजें हमारे साथ हो रही है, बट एवरीथिंग इज just happening as a response to us, as a not as a reaction or not as a random process. It is a what we are constantly choosing, उसका एक reflection हमें मिल रहा है. One of the most famous and one of the most notable psychiatrist बोलो या psychologist बोलो, Carl Jung, I think his quote is very related to this, that until we make the unconscious conscious, it will direct our life and we will call it fate. तो कुछ अनकॉन्शियसली हम ऑर्डर्स प्लेस करे जा रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. बट जब हम वो अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाएंगे वी विल सडनली सी देर इज नथिंग, नो पेपर दैट इज डिजाइनिंग आवर लाइफ. देर इज नो कहीं और लिखा हुआ हमारे लाइफ में नहीं हो रहा है. वो 95% वाला प्रोग्राम हमारी जिंदगी नहीं चला रहा है. It is us who are co-creating it with life. So what you refuse to confront within yourself will repeat itself through people and circumstances. Self-knowledge breaks the illusion of destiny and turns unconscious patterns into conscious choices. So we have seen there are parts in us, in our life, जहां हम रिफ्यूज कर रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये मेरे लिए ठीक नहीं है. जब तक हम उसके साथ लड़ेंगे जो अंदर हम इग्नोर कर रहे हैं, वो बाहर सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, पीपल, प्लेसेस में हमें कॉन्स्टेंटली हमारे सामने आता जाएगा. सो टुडेज इन्विटेशन इज टू इंटीग्रेट ऑल पार्ट्स. टुडेज इन्विटेशन इज टू जस्ट ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. Now there is no distinction of above the line, below the line. Her emotion is with us. All emotions are our friends. There is no good or bad. There is no better or worse. Everything is for us. Everything is working for us, and everything is taking us to next level, to deeper and closer to who we really are. So again, आज से we will bring that mindfulness break as we begin this chapter. कि द रिस्पॉन्स और रिएक्शन में एक ही फर्क है. जस्ट दैट मोमेंट, रिएक्शन इज कुछ होता है एंड हमारा प्रोग्रामिंग उस पर रिएक्ट करे जाता है. रिस्पॉन्स इज दैट जस्ट कॉन्शियस चॉइस कि आई विल चूज हाउ दिस वर्क फॉर मी, आई विल चूज व्हाट आई विल डू अबाउट इट. सो टुडे वी विल more consciously bring responsibility in our life, in our session. So we will begin with 30 seconds of silence before we go deeper into this journey. And we will choose now, next 1 hour, what I want to feel. No matter यहाँ क्या हो रहा है, how I will be, I will decide. हम एक इमोशन लेते हैं, उसके साथ कमिट करते हैं खुद को. And from with that intention, with that conscious choosing, conscious responding, we will go deeper into the session. So inviting you all to close your eyes, sit for 30 seconds, set an intention of how you want this chapter to go, this day to go, your life to go, and be on that horse for the rest of the day and the chapter. Thank you, Can you hear everyone. me? Yes, Parati, we were just taking a minute of silence. Welcome.
Uh, yes, welcome back, everyone. It's an opportunity to take destiny back in our hands and co-create the life we always longed for and wished for. So let's begin. So again, I will just summarize ये क्या बोल रहा है. What Drishti, can we just enlarge the screen, just the reading part? Okay. So life follows us. हर चीज जो हम हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं is a result of what you have given out in your thoughts and feelings. Whatever, whether you realize you have given them or not. जो हम कल बोल रहे थे, हम ऑर्डर प्लेस किए हैं, बट हम शायद भूल गए हैं हमने ऑर्डर प्लेस किया है और फिर हमें लग रहा है कि ये चीजें क्यों मिल रही है. तो जो भी हमारे लाइफ में है, एवरीथिंग फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉल, वो हमने मांगा है, वो हमने चूज किया है, वहां पे हमने अटेंशन और एनर्जी दी है, इसीलिए वो हमारे साथ हो रहा है. तो इसीलिए वो हमारे गिविंग का रिजल्ट है दैट वी आर रिसीविंग इट. So life is not happening to us, it is following us, it is taking our orders. और हमारी किस्मत हर मोमेंट हमारे हाथ में है, हमारे साथ में है. अगर हम कॉन्शियस हो जाए, अगर हम अवेयर हो जाए व्हाट वी आर इन एवरी मोमेंट गिविंग आउट, ओनली विद दैट अवेयरनेस, आवर किस्मत विल कम इन आवर हैंड. हम सबने सुना है दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे हम देखेंगे विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर. जितना हम हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को हमारे हाथ में रखेंगे, उससे जो पावर हमारे लिए खुलेगा, इट इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल. सो दैट इनविटेशन टू ओन अप आवर लाइफ फुल्ली, कि मैं जैसी हूँ, मेरी लाइफ जैसी है, मेरे साथ जो हुआ, जैसा हुआ, वो मेरा ही क्रिएशन है. और अभी जो होगा वो भी मेरा ही क्रिएशन है, और आगे जो होगा वो भी मेरा ही क्रिएशन है. सो हर चीज इज प्रेजेंटेड फॉर अस टू चूज व्हाट वी लव, एंड लाइफ इज अ कैटलॉग. जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक मेन्यू कार्ड होता है टू चूज फ्रॉम व्हाट वी वांट. ऐसे लाइफ का मेन्यू कार्ड बहुत बड़ा है, बिकॉज हर तरह के लोग हैं. किसी को खुशी से सीखना है, किसी को जॉय में सीखना है, किसी को वायलेंस में सीखना है. एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. लाइफ इंक्लूड्स एवरीथिंग. लाइफ अलाउज एवरीथिंग. बट हमारे पास वो चॉइस है कि हमें किससे सीखना है. तो लाइफ हर मोमेंट हमारे आजू बाजू के सिचुएशंस, लोग या वर्ल्ड के सिचुएशंस या हर चीज से हमारे लिए कैटलॉग प्रेजेंट कर रही है कि हर स्पेक्ट्रम है. आप जहां ध्यान दोगे, लाइफ को लगेगा हमें वो चाहिए, एंड इट विल ब्रिंग टू अस. So that's why it's very important, wherever we are giving attention is how we are placing order on this catalog of life. And today we will also discover, so many of us have sat कि ये purpose क्या है, हमारी जिंदगी का purpose क्या है. So today we will have a look कि what really is this purpose. Maybe it is, the purpose is to just be happy, to be fulfilled, to follow our joy, to follow our happiness. So we are going to start this, and please bring in your sharing. Thank you. Yes, Drishti. Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is result of what you have given out in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you. Life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? If your life is far from wonderful, then you have inadvertently been labeling all the bad things. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life. Because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love. So you don't choose them. Yes, simply एक ही चीज है, हर चीज उसके अराउंड डिजाइन की गई है. यू नो, टू लव, टू लव, टू एंजॉय, टू हैव फन. यू नो,
हमने उसमें अपने 2 बूंद डाल के उसको हमारे जैसा बना दिया है. बट इफ यू रियली सी द वे वी आर born ऑल्सो जस्ट सो फुल ऑफ लव एंड जॉय. एक बेबी का प्रेजेंस इज इनफ टू ट्रांसफॉर्म द होल प्लेस. बट फिर हम बेबी को अपनी कंडीशनिंग दे दे के हमारे जैसा बना देते हैं. एंड देन वी से अच्छा लाइफ के साथ लड़ो. नो, we were born perfect, we were born joyous, happy, excited, and we were supposed to grow that. वो सीड्स हमें उसके फ्रूट्स हमें लेने थे. But the beauty is in this moment we have a chance to, we have that clear slate and we can create what we want. We always have that child in us. We can always tap into that and live from that. सो अगर हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, दे आर सेइंग इनएडवर्टेंटली, हमें शायद पता नहीं है बट हम बहुत बिजी है जज करने को और लेबल करने को. ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये इंसान ऐसा है. नो, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, ये तुम्हारा प्रतिबिंब है. और अगर हम उसको जज करके और एनर्जी देंगे तो वो और बढ़ेगा. वो हमारा काम ही नहीं है. इट इज सपोज टू बी पेनफुल, ताकि हम वो करना बंद करें एंड वी मूव बैक टू लव. Love is effortless, love is joyful, love is freeing. And that is the purpose of life. That is the compass telling कि रास्ते में मजा आएगा. ये रास्ता लव वाला बहुत आसान है, ये लो. बाकी रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत टफ है. और वो मुश्किलें हम ही हमारे जजमेंट से, हमारे फियर से, हमारे एंगर से क्रिएट कर रहे हैं. So our purpose is to just love and be happy, be joyful, and just bask in life. So it is also this thing कि लाइफ में हमने खुद को बना दिया है कि नहीं, मैं टफ बनूंगी, मैं सैक्रिफाइस करूंगी, मैं मुश्किल चीजें करूंगी तो ही मेरी जिंदगी सही होगी. नहीं, ये हमने किसी के लिमिटेड बिलीफ्स इनहेरिट करके अपने में उतारे हैं. दे आर नॉट वर्किंग. Let's try a different set of belief. Let's try a different set of life, different way to deal with life. Anybody has anything to add here? All right. Drishti, we can begin the next part. I would like to add. Yes, please. Uh, और ये ना बहुत अनकॉन्शियस है, मतलब हमको पता ही नहीं है हमने कैसे ये ऐड किया, अनलेस सम रिफ्लेक्शन, in whichever way, maybe through some workshops or just in your own silence. Only then I think we are able to release it, because ये बहुत डीप है. और मीडिया भी हमको बहुत एनकरेज करता है गुड गर्ल बनना, सबको खुश करना. मतलब मैंने तो बहुत कॉन्शियसली, like, I make sure that I'm not a good girl. And I think it has given me such a good freedom. That's what I would like to just say. Thank you. Thank you, Chola. Thank you for sharing and opening your heart. And हमें जब लगता है ना, oh, we got it, that is a new trap. So let's always keep the consciousness on and not give in to a pattern. And just क्योंकि in every day I'm realizing, oh my God, मैंने old चीज एक नए layering के साथ करना शुरू कर दिया है. So thank you for sharing and catching those patterns and trying different things. And the invitation is, let's continue being aware. That's it. Thank you. Yes, Drishti. Choose what you love. When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting the car to you. How you feel when you see your dream car is everything. Because if you choose to feel nothing but love for that car, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealous because someone else is driving your dream car, you just gonged yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose. And you chose, and you choose it by feeling love. Do you see that it doesn't matter whether someone else has something or and you don't? Life is presenting everything to you. And if you feel love for it, you are bringing the same thing to you. Continue. When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want.
If you are overweight and you are walking down the street and the person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And if you feel bad because you don't have body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. If you are struggling with some kind of disease and you are surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you, so you can choose health. And so when you feel love for the health around you, more than you feel bad about a lack of health, you are choosing health for yourself. When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person. And you are bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you. If you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from your life. Life is presenting children to you each time you see them, and you choose, and you can choose. Yeah. So many times, when I go to a restaurant, मैं just actually walk करती हूँ. I'm like, अच्छा ये डिश अच्छी लग रही है, what is that? ये डिश अच्छी लग रही है. I will never once think कि अरे इसके टेबल पे आ गई है तो मुझे नहीं मिलेगी. It's probably a chance for me to see कि हाँ ये एक्चुअली मेन्यू में समझ नहीं आता है, यहाँ ज्यादा समझ आ रहा है कि दिस लुक्स गुड, दिस डजंट. एंड हम तो यहाँ पे ये बाउंटिफुल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, उसके पास तो इतना है हम सोच भी नहीं सकते. हमारी दृष्टि में अभाव है इसलिए हमें अभाव लगता है. एंड हम जब वो अभाव की दृष्टि से देखेंगे probably we will close the door for it to come in our lives. बट इट्स अ कैटलॉग. हमारे मेरे आजू बाजू अगर किसी को बहुत खुशी वाला ही इज एंजॉयिंग वर्क ही इज डूइंग, ही इज लविंग द वर्क ही इज डूइंग, इट्स इन कैटलॉग फॉर मी कि ये मेरे लिए पॉसिबल है. नाउ इफ आई एम जेलस कि इसको मिला मुझे नहीं मिला, तो मैं वो चीज के लिए, वो काम के लिए दरवाजे बंद कर दूंगी. बट इफ आई एम एक्साइटेड, अरे इसको मिला तो मेरे लिए भी अवेलेबल है, मेरे लिए भी पॉसिबल है, तो वो चीज वेट ही कर रही है मेरे दरवाजे पे. फाइनली आई विल ओपन द डोर फॉर इट टू कम इन माई लाइफ. तो हर चीज हमारे सामने है. गाड़ी बोलो, पार्टनर बोलो, बेबीज बोलो, हैप्पी कपल बोलो, हर चीज जो हम देखते हैं अगर उसको हम लव देंगे वो हमारे पास आएगा. अगर हम उसको लव नहीं देंगे, लैक ऑफ लव देंगे, तो हमारे पास वो दरवाजे पे बैठा रहेगा पर हमारी लाइफ में नहीं आ पाएगा. तो दरवाजा तो हमें खोलना पड़ेगा. दैट इज द चॉइस, दैट इज हाउ लाइफ फॉलोज अस. एंड अगर लाइफ को लगा अगर इसको इधर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसको जेलसी हो रहा है, मतलब अगर इसको एंगर हो रहा है कि इसको मिला मुझे नहीं मिला, मतलब इसको नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू गिव हर मोर एंगर. यू नो सो दैट्स हाउ बिलो द लाइंस वी आर अनकॉन्शियसली टेलिंग ये चीज हमें नहीं चाहिए. आई रिमेम्बर अ रिलेटिव, उसके शादी के फर्स्ट 15 साल में प्रॉबेबली उन्होंने एक गाड़ी कैसे तो ली, एंड सेकंड बहुत मेहनत करके somehow दे गॉट द सेकंड कार, मतलब. बट उसके बाद लास्ट 2-3 साल में शी हैज गॉट अनदर 2-3 कार्स, बिकॉज उसके बच्चे 16-17 साल के होने लगे एंड दे फेल इन लव विद कार्स. तो वो दिन रात सिर्फ गाड़ियों की बात करते, दिन रात, यार ये गाड़ी क्या मस्त है मम्मा, ये गाड़ी क्या मस्त है, ये गाड़ी क्या. एंड शी इज लाइक टू द पॉइंट मैं थक गई, लाइक बस करो. बट लिटरली probably one of her child reached 17-18, started क्या बोलते कोई certain license पे ड्राइविंग, उसको उसकी गाड़ी मिल गई. यू नो फाइनेंशियल कंडीशन 2 साल में तो इतनी नहीं बदल सकती ना, बट जब भी हम इतना प्यार दे, लाइफ हर चीज करके वो हमारे पास लेके आएगी.
simply those two kids giving love to cars without thinking क्या होगा कैसे होगा खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, बस एंडलेस लव एंडलेस प्रेज एंडलेस उसमें एनर्जी देके वो चीज उनके पास आ गई और सोचे भी नहीं सकते उस हिसाब से आ गई. And that we have seen in all areas, we also do that. Like for me, मैंने लाइफ में चिलिंग को बहुत प्यार दिया है. लाइक आई लव टू चिल, आई लव टू हैव माय ओन स्पेस, आई लव टू हैव लाइक टू डू नथिंग एंड आराम वाली जिंदगी. एंड इट हैज सरप्राइज्ड मी कि नो मैटर वेयर आई गो, मतलब आई हैव गॉन टू द हार्शेस्ट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे बहुत काम कराते हैं, टू एनी अदर प्लेस. लाइक आई हैव जस्ट बीन सरप्राइज कि मैं जहां भी जाऊं चिल करने मिला है, इंक्लूडिंग लाइक द हाउस आई गॉट मैरिड इन. मतलब this was the heights of it all. I'm like sometimes I'm like let me at least make chai man. मतलब मैं कुछ तो करूं. I am surprised with the kind of in-laws and with the house I have gotten कि इतना chilling कैसे possible है, इतना मतलब हर चीज हाथ में मिलना कैसे possible है. So it has probably defied all the ideas, all the things I have, be it ashrams, be it colleges, be it anything and everything. Simply because मैंने चिलिंग को इतना रिस्पेक्ट प्यार और अपनापन दिया है दैट मैं कहीं भी गई हूँ वो चीज ने मेरा साथ निभाया है. हाउ डू आई गो फिक्स इट, डू आई गो प्लान इट? नो, आई जस्ट गिव लव और वो चीज हमेशा मेरे साथ रही है. एंड ऑल्सो देर आर मेनी थिंग्स जिसको मैंने प्यार नहीं दिया है और वो भी हमेशा मेरे साथ रही है. सो यस, जिसको भी अबव द लाइन फीलिंग दो वो भी हमारे साथ रहेगी और जिसको बिलो द लाइन दो वो भी हमारे साथ रहेगी. यस कंचो. सो द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स, उसमें से जैसे उन्होंने वो कार वाली बात बताई, या लाइक बेसिकली जेलसी या समथिंग जो हमारे पास नहीं है, हम किसी और की देख के उसको अच्छी फीलिंग नहीं दे, काइंड ऑफ थिंग. सो इट इज नॉट entirely related to that, बट आई रिमेम्बर कि स्टार्टिंग में यू सेड अबाउट चाइल्ड, कि कैसे हम अपने कंडीशनिंग उन पे डालते रहते हैं, राइट? तो आई रिमेम्बर ऐसा होता था बहुत बार कि वेद ने समझो अपने पापा की वॉच ले ली, या लेके वो दौड़ रहा है, या वी प्रिंटर के सारे कार्ट्रिजेस निकाल रहा है, तो आई यूज टू येल एट देम. एंड जब मैं उन्हें डांटती थी, मैं बोलती मत करो, वो बहुत महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, पुट इट डाउन. तो सागर यूज टू ऑलवेज करेक्ट मी सेइंग, डोंट पुट दोज वर्ड्स इन देयर माइंड. हमें पता है वो क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, बिकॉज वी बॉट इट, राइट? अगर हम उनके माइंड में डालेंगे कि ये चीज महंगी है या ये चीज ऐसी है, हम उनकी सोच लिमिट कर रहे हैं. एग्जाम्पल विच यू गिव, कि जब बच्चे बड़े हुए, क्योंकि उनकी लिमिट, बच्चों के मन में लिमिट नहीं है. हम बड़े हमारे अपने आप को लिमिट करते हैं सब फैक्टर्स कैलकुलेट करके, पर बच्चों का मन इतना प्योर है, उनके लिए एवरीथिंग इज अचीवेबल. एंड दैट इज समथिंग आई रियली लर्नड, एंड responsibility, that is how I changed my response to it. And it helped me also understand ki not everything is expensive. I was telling you the other day, टेबल वाली बात, राइट? कांच का टेबल, शायद मैं भी, अगर समझो मेरी मम्मी ने उनको डांटा, तो शायद मैं भी वो डांट कंटिन्यू करती. अगर वो बोलते कंचू ने कुछ बोलो, तो मैं भी बोलती नहीं वेद ऐसा नहीं करो, कांच का टेबल है, टूट जाएगा. बट व्हेन ही केम टू मी, आई एम लाइक कोई बात नहीं, तोड़ो, नया टेबल आएगा. तो लाइक दैट हेल्प मी ऑल्सो चेंज, राइट? एंड यू ऑल्सो शेयर योर चाइल्डहुड स्टोरी, कि हमारे घर में तो एनकरेज करते थे कि नहीं तोड़ो, नई चीजें आएगी. दैट री मी ऑल्सो कि नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, की बात सही है. हम क्यों अपने आप को लिमिट करें कोई भी चीज में? जो भी हो रहा है अच्छे रीजन से हो रहा है, एंड समथिंग ग्रेट विल कम आउट ऑफ दैट ऑल्सो. सो या, दैट्स समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर. I'm mute. Okay. Thanks for sharing that, Kanchu. Gaurav, Varsha, you both came a little late, so we've set the intention कि in between we are taking sharings. So please jump in wherever you find relevance, wherever you find some examples from your life. And ये हम सबके लिए है कि यहाँ पे हमारे लाइफ में examples है. Now it's time इसको सिर्फ एक रीडिंग की तरह लेके हम अपने अंदर जाए और ये एग्जाम्पल्स देखें और हम वो अक्नॉलेज करें कि हाँ, हर मोमेंट हम ही क्रिएटर है, हम ही क्रिएट कर रहे हैं. So please jump in wherever you can. So yes, life is a catalog. जो भी हमारे नजर के सामने है is a catalog. अभी जो भी एरिया पे हम रुकेंगे और उसको हमारी दृष्टि देंगे, हमारी नजर देंगे,
एंड हमारी एनर्जी देंगे, वो हमारी लाइफ में आएगा। बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर प्लेसिंग इज वेरी सिंपल। wherever the attention goes, the energy flows and that will come in your life. So जहां देख रहे हो, जो चीज कंज्यूम कर रहे हो, वो ध्यान रखो, बिकॉज वो चीज का हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अगर हम बैड वर्ल्ड न्यूज़ेस भी देख रहे हैं विच आर डिप्रेसिंग, अगर हम उसमें खुद को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, वी आर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर दैट टू मैग्नीफाई। सो बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। कहाँ आप देख रहे हो, कहाँ आप एनर्जी दे रहे हो, कौन सी चीज में अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। यस दृष्टि। When you are playing a sport and another person wins, when a work colleague tells they got a pay rise, when someone wins a lottery, when a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift on a weekend away, or that they brought a new beautiful house, or that their child won a scholarship, you should be as excited as they are. You should be as excited and happy as though it has happened to you, because then you are saying yes to it. Then you are giving love to it and you are bringing it to you. When you see your dream car, a happy couple, perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you are on the same frequency as those things. Be excited because your excitement is choosing it. This is If this is very important. Be excited because your excitement is choosing it. Be excited because your excitement is choosing it. Why a child is so happy? वो बस चीजें ढूंढता है जिसमें उसको मजा है, वो चीजें ढूंढता है जिसमें उसको मजा है, तो सालों साल ही इज जस्ट एक्साइटेड एंड हैप्पी। अगर हमें वो चाइल्ड बनना है, वी हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग दैट एक्साइटमेंट। टुडे 5 अलार्म रखो, पूछो खुद को व्हाट एक्साइट्स मी, व्हाट ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस, व्हाट ब्रिंग्स मी जॉय। बस वो चीजें करो, एंड डोंट जज। अरे मूवी देख लिया, इट्स बैड। अरे सॉन्ग सुन लिया, इट्स खराब। नो, anything that doesn't harm anybody and brings excitement to you, you must do. It has to be a play, it has to be fun. That's it. Follow your excitement. That's it. How do you reach your purpose of life? How do you reach your destiny? How do you take this in your hand? Follow your excitement. And उसके लिए बहुत बार हमें पता भी नहीं होता है what excites us. So let's find out what excites us. Let's do trial and error and follow our excitement. Be excited because your excitement is choosing it. Yes, Drishti. everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they are bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you while pushing away the very thing you want with a mighty force. Only love brings what you want to you. This is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Yeah. वन ऑफ द हमने स्टार्टिंग डेज में देखा फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है, लोगों को फॉरगिव करना क्यों जरूरी है। बिकॉज अगर वहां पे इनकम्प्लीशन रहेगा ना, कोई भी हो, हमारे केयर गिवर्स बोलो या हमारे सिबलिंग्स बोलो या दोस्त बोलो या दूर के रिश्तेदार, अगर हमने किसी के लिए जजमेंट रखा, गुस्सा रखा, तो वो इनकम्प्लीशन हमारे लाइफ में हर जगह जाएगा। बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग, वट एवर वी गिव जजमेंट टू विल ऑल्सो स्टिक टू आवर लाइफ, इट इज स्टिकी। तो जब तक हमने इसने मेरे साथ सही नहीं किया को पकड़े रखेंगे, वो स्टोरी हमारे लाइफ में हर मोमेंट पे रहेगी। इसीलिए बोलते हैं पास्ट रिपीट होता है, बिकॉज हमने पकड़ के रखे हैं पास्ट के इमोशंस। बट व्हेन वी इंटीग्रेट इट कि ये मेरे ही ऑर्डर का नतीजा है, मुझे नहीं पता है कैसे, बट सो आई एक्सेप्ट इट। अगर लाइफ ने दिया है वो मेरे लिए ही होगा, मेरे अनकॉन्शियस ऑर्डर का। आई लव एंड एक्सेप्ट इट ऑल एज पार्ट ऑफ मी। एंड जब हम वो चीजों को ओन करेंगे, वो चीज हमें ओन नहीं करेगी, एंड वी विल हैव पावर ओवर इट। वी विल शिफ्ट फ्रॉम हमारे साथ हुआ टू हमने क्रिएट किया। और अभी इस मोमेंट पे व्हाट डू आई डू? दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म ऑल इमोशंस टू लव। दे आर dying to be transformed, they are waiting to be transformed. So
Life catalog contains things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. So अगर जब हम bad feelings देते हैं, हम उसको choose करते हैं. हम किसी को jealousy देते हैं, किसी पे गुस्सा रखते हैं, उसको choose करते हैं. It's an invitation. हर आज हम देखें कहाँ हमने कुछ चीजों को बहुत पकड़ के रखा है. How can we lead them, drop them with love? How can we let them go with love? How can we, because हमारी energy वहां अटकी हुई है. एक टू डू लिस्ट का ऐप होता है जहाँ पे जब तक वो लिस्ट खत्म नहीं होती वो पड़े रहते हैं, बट जब हमने टिक किया ना वो डिसअपियर हो जाते हैं. सो सेम हमारे लाइफ में कुछ साइकिल्स होते हैं जहाँ पे अगर कुछ अटक गया ना, वो वो कैसेट अटकी रहती है, पर जब हमने उसको फॉरगिवनेस करके एक्सेप्ट करके एम्ब्रेस करके अपना, वो डिसअपियर हो जाते हैं. जो चीज ने हम इतनी जोर से पकड़ी है बट उसको लव फॉरगिवनेस देंगे वो डिसअपियर हो जाएगी, और उसमें जो एनर्जी थी वो लव में एनर्जी आके हमारे, और इट विल गिव अस सो मच मोर एनर्जी टू पुट इनटू थिंग्स वी लव. So this is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Haven't we seen the loving people? जितनी चीजें करते हैं, जितने काम करते हैं, वो चीज इतनी बढ़ती जाती है, and they will have more and more and more opportunities to love. And if you really see, because it's a law, जो एक चीज के लिए काम करता है, हर चीज के लिए काम करता है. So this miracle is that every time those who hate also, more they give hate, more they will have chances to hate. More they give anger, more they will have chances to anger. More they will give irritation, more they will have chances. And more they will give gratitude, more they will have chances to gratitude. What it says is, जो घोड़े पे रहोगे वो घोड़ा तुम्हें उसी की तरफ लेके जाएगा, और वही वही लाइफ में आएगा. यस, आई थिंक अगेन हमने जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखा था, द ग्लिच इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स के लिए कोई और है ही नहीं. वो तुम्हारे पीछे इतना पागल है कि उसको बस तुम ही तुम दिखते हो हर चीज में, सिर्फ तुम ही तुम हो. यू नो एंड वी सी दिस इज द मिरर, जो हम है यहाँ सामने बस वही है. देयर इज वन, एंड यूनिवर्स ऑल्सो सीज इटसेल्फ इन अस, द रिफ्लेक्शन ऑफ इट इन अस. तो ये लॉ ऑफ वन क्या है, वी विल लुक एट इट. या The law of one, you. There is a simple formula you can use for the law of attraction that will stand you in good stead with every person, situation, and circumstance. As far as law of attraction is concerned, there is only one person in the world, you. There is no another person and nothing else as far as the law of attraction is concerned. There is only you because the law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts. And it's the same for every other person. And so, in truth, the law of attraction is law of you. There is only you and there is no other person. For the law of attraction, the other person is you, and that other person is you, and those other people are you, because whatever you feel about anyone else, you are bringing to you. whatever you feel about anyone, you're bringing to you. हमें लग रहा है हम किसी और को फॉरगिव नहीं कर रहे, बट हम खुद को फॉरगिव नहीं कर रहे. हमें लग रहा है हम किसी और को जज कर रहे हैं, बट हम खुद को जज कर रहे हैं. हमें लग रहा है कोई और सही नहीं है, पर हम वो खुद के साथ कर रहे हैं. द कोल एग्जाम्पल, हम किसी और को फेंकने की कोशिश करते हैं, पर जलता तो हमारा हाथ ही है. तो जो हमें लग रहा है हम किसी और के साथ कर रहे हैं, वो हम सिर्फ खुद के साथ कर रहे हैं. वो यूनिवर्स सिर्फ हमें हमें देगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई टू इंटीग्रेट ऑल पार्ट्स एंड जस्ट ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग विथ लव. या What you feel about another person, what you think or say about another person, what you do to another person, you do to you. Give judgment and criticism, and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything, and you give it to yourself. There is no other for the law of attraction. So it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you are including it in your life. And with anything you don't love, simply turn away from it without judgment, and you won't include it in your life. थैंक यू. तो जो भी नहीं चाहिए, जब तक हम उसको एनर्जी देंगे वो हमारे लाइफ में रहेगा.
सिंपली उसको एक्सेप्ट किया एंड हमने जो चाहिए उधर देखना शुरू किया, तो वो हमारे लाइफ में रहेगा। सो हर इमोशन स्टिकी है। जो इमोशन दोगे और जो क्वालिटी का दोगे, वही 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 हमें मिलेगा। क्योंकि हम किसी और के साथ कर ही नहीं रहे। हम गुस्सा भी कर रहे हैं तो वो खुद ही के ऊपर कर रहे हैं। हम एंगर भी कर रहे हैं, जजमेंट भी कर रहे हैं। हमें लग रहा है हम ट्रम्प को जज कर रहे हैं या मोदी को जज कर रहे हैं, कि हम अपने आप को जज कर रहे हैं। हम कोई स्टार्स को जज कर रहे हैं, हम अपने आप को जज कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को नहीं, हम अपने आप को। हर चीज जो हम दे रहे हैं वो खुद को बहुत बहुत ज्यादा मिल रही है। एंड दैट इज व्हाट इज वुंडिंग अस, नथिंग आउटसाइड। हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, एंड वो हमें अटकाए रख रही है। या कंचो? This is very random, but I was thinking, I don't know why it just came to me. Okay, I have not thought about it. This is the first time this thought has come to me. Uh, Long back, I don't know if you remember, जब भी ध्यान छोटा था, बेबी, ध्यान इज भावना's nephew. तो मुझे इतना क्यूट लगता था, इतना अच्छा लगता था। हम स्विमिंग पूल के यहाँ पे उसके साथ जब वॉक कर रहे थे, वो छोटा बेबी था, वो रो रहा था, तो भावना उसको नीचे लेके वॉक पे हमेशा लेके आती थी। आई नेवर रियलाइज्ड आई गेव इट सो मच लव टू दैट थॉट, लाइक इट इज सो गुड, लाइक टू हैव सच अ नाइस फ्लफी रैबिट की तरह क्यूट क्यूट बेबी। And I just it just connected in my mind. Did I inadvertently give love to that fact, and now that I have my own cute fluffy babies? Because I remember telling you, भावना, मैंने कभी बच्चे देखे नहीं है। भावना बोलती, मैंने तो इतने बच्चे देखे, हमारी जॉइंट फैमिली है और सब हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, तो हमने सारी एज के बच्चे देखे हैं ग्रोइंग अप। मैंने कभी बच्चे नहीं देखे। द यंगेस्ट आई हैड सीन, मुझसे 10 साल छोटा मेरा, 12 साल छोटा मेरा एक भाई था। तो वो है। अडल्टहुड है। वो बड़ा हो गया है, मगर वो जाहिर हो गया है। बट पॉइंट बीइंग कि आई जस्ट रीडिंग दिस, टू कोई चीज किसी और के पास है, देख के आप उसे प्यार देते हो कि वो चीज उनके पास है, इट कम्स टू यू। एंड इट जस्ट गॉट मी टू दैट थॉट कि यार, ध्यान को मैंने नाम भी दिया था नंदन। बिकॉज अभी कभी कभी मैं बच्चों को बुलाती हूँ, गोपाल इधर आओ। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट आई हैव नेवर हर्ड दैट निकनेम। I don't know one person in my life named Gopal or Nandan. But point being, it comes out of that place of love. And I feel कहीं मैंने ध्यान को manifest कर लिया है अपनी life में। Kensho, I have sat with this question that what made her have kids, यार। I मतलब know, इतना right? clarity, I think मैं तो I'm शादी getting के the लिए सब answer. इतना कंफ्यूज थी लाइफ में कि यार मैंने शादी कर ली। आई वाज सो अमेज्ड, एंड देन आई हैव लाइक, आई लिटरली हैव दैट वाइट क्यूट छोटा छोटा रैबिट जो मेरे को ऐसे चाहिए You था। should thank Geeta today, yaar. Give her a 100%, message. 100%। Hmm. Thank you for sharing, Kensho. Thank you. Yes, दृष्टि। तो जो दूसरों को दोगे वो दूसरे तक तो नहीं पहुंच रहा है, हमारे लिए जस्ट कमिंग ऑन अस, वर्किंग ऑन अस। यस कुणाल। So I would like to just share something. Um, Something between enforced emotion and love. What the book reading is also speaking out कि हम जब किसी से कोई चीज की जेलसी रखते हैं या कोई चीज सामने वाला कर रहा है तो हम उसे मांगते हैं। तो मे बी हमें सच्ची गाड़ी नहीं चाहिए, मे बी सच्ची हमें और कुछ चाहिए, मे बी घर चाहिए, बट सामने वाले ने गाड़ी ली है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए। दैट्स एन एनफोर्स्ड इमोशन। मतलब मुझे उस चीज से खुशी नहीं मिलेगी, बट सामने वाले ने की है तो मुझे करना जरूरी है, उसी से ही मुझे खुशी मिलेगी। अ लॉट ऑफ टाइम्स वो सक्सेस मिल भी जाती है, बट वो लेवल की खुशी नहीं मिल पाती बिकॉज सामने वाले ने शायद बोला कि मुझे तो गाड़ी ही चाहिए। उससे वो जो खुशी रहती है वो हमें नहीं मिल पाती। एट द सेम टाइम अगर हम अपने कोई चीज पे उस हिसाब से प्यार दे पाए, जैसे कि अगर हमें कोई चीज का घर चाहिए, तो अगर हम उसी को ही अगर हम करें, सामने वाले को शायद नहीं चाहिए, तो ये कंपटीशन में हम एक बार ये चीज बहुत भूल जाते हैं कि हम सामने वाले को देख के इधर compete करने की कोशिश नहीं करें। हम किस चीज को हम प्यार दे सकते हैं, हमें वो चीज मिलेगी। एंड शायद कोई चीजें हम एनफोर्स करके भी ले ले, वो खुशी नहीं मिल पाती। लॉट ऑफ टाइम्स सोचते हैं कि अरे हमने तो ये मांगा था, हमें तो इस चीज की खुशी मिली ही नहीं, इतना हमने कर लिया, मैंने शायद मास्टर्स कर लिया, मैंने शायद इंजीनियरिंग कर ली, बट वो चीज मैंने शायद कंपटीशन में किया कि मैंने अपने चॉइस से किया। तो वो बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे कि मैं यूएस गया था, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू यूएस। आई थिंक सो कंशु वुड एग्री टू इट। मैंने तो ऐसे ही किया, मैंने बोला सब कर रहे तो चलो कर लेता हूँ।
नहीं, मैंने जब काफी रिक्वेस्ट किया था और अर्ज किया था कि प्लीज तू उसको चल, जाना था, परमिशन मिलेगी। इसको उसको जाना था, कंचू को जाना था। एंड आई जस्ट वांटेड कि मेरे को एमबीए करना था, आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट। बट लकीली व्हाट हैपेंड, जो कोर्स मैंने फोकस किया, भले ही वो मेरे को जो चाहिए था मुझे भी वही ही मिला। मैंने बोला कि मुझे न्यूयॉर्क के बाजू में रहना है एंड मेरे को मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज मेरी लाइफ शायद आगे मेरे को मैनेजमेंट ही करना है। एंड आई गॉट द यूनिवर्सिटी। कंशु को सबसे बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी मिली कैलिफोर्निया में, एंड शी लेफ्ट इट, एंड शी हर फोकस वाज कि मेरे को यूएस आना है। तो शी केम टू व्हाट यूनिवर्सिटी आई हैड चोजन। आफ्टर दैट इट इम्पैक्टेड कि हाँ, मतलब व्हाट वी आस्क फॉर, मे बी वी हैव टू रियलाइज व्हाट वी आस्किंग फॉर। एंड जिस चीज से हमें खुशी मिल रही है, एंड शायद हमें वो भी चीजें मिले जो हम शायद सामने वाले को देख के कर रहे हैं, बट अगर हमारा इंटेंशन सही डायरेक्शन में है, तो वो चीज हासिल करने के बाद जो खुशी मिलेगी, दैट विल बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट हमने शायद जो स्नैच करके ली हो, या छीन के, या मतलब वॉट एवर, लाइक वी हैव फोर्स्ड इट ऑन। So well said, Kunal. Thank you. Thank you. And I think that is the difference between bhav and abhav, the scarcity and the abundance mindset. कि रह जाएगा, नहीं है. You know, somewhere कुछ दिनों पहले greed somewhere has come. So greed is nothing but the scarcity mindset कि नहीं है, you know. And abundant mindset is बहुत है. मतलब दोनों में आएगा. तो जैसे वो हमें फलेगा, वो वैसे हमारे साथ काम करेगा. एंड ग्रैटिट्यूड इज द बिगेस्ट फाउंडेशन स्टोन फॉर abundant mindset, for the bhav, you know. Yes, Masi. And we also would love to hear your sharing from yesterday. तो अगर आप वो भी इधर ऐड करना चाहो, we would love to hear from you. Let's unmute you. Yes. मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग में है। तो तुमने कभी भी किसी को बोल दिया, हम लोग को मालूम है, आवाज आ रहा है ना, हम लोग को मालूम है करके कि ये सही नहीं है, फिर भी कभी दिमाग में आता है तो बोल दिया, और वही टाइम रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे को ये नहीं बोलने का था, और उससे हम लोग ने माफी भी मांगे, दिल से मांगी, फिर कहीं ना कहीं एक दो दिन रह जाता है, तो तभी हम लोग को किस तरह से मतलब कैसे फीलिंग लानी है अंदर, ऐसा क्या करे? तो थोड़ा ये मेरा क्वेश्चन था। अच्छा फील करना है, हर चीज का जवाब है अच्छा फील करना है, अच्छा नहीं, फील करना नहीं, वो है. कोशिश वही करती है, फिर भी कभी एक जगह पे रह तो जाता है। समवेयर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हाँ, होगा अच्छा ही होगा, यू वो नो. अभी तीन क्योंकि तीन दिन से वही बोल रही है, हाँ, बिकॉज मतलब हर चीज वही। हमारे लिए हो रही है. और देर इज, वी आर को क्रिएटर, यू नो. एक फोर्स भी चला रहा है हमें. कुछ चीजें अनकॉन्शियसली आएंगी, हम यू टर्न्स लेंगे. अब मैं साइड में बैठ के और रो रही हूँ, मैंने क्यों गड़बड़ की, मैंने क्यों, यू नो. नहीं किया, हुआ. एक्सेप्ट करना. हम जब लाइफ से लड़ते हैं ना, वो हमें अटकाता है. एक्सेप्ट हुआ ना, हो गया, कुछ बदल सकते हैं नहीं. उसको रियलाइज करना ही बहुत बड़ी बात है. और एक्सेप्ट करना, और दिल में फिर वो पर्सन के लिए एक्स्ट्रा प्यार दे दो. अभी वहां पे अंधेरा था इसलिए ये हुआ. अभी रोज 5 मिनट आपको जब तक लग रहा है, एक्सेप्ट करो. बोलो जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे बताया कि ये एरिया में मैंने ये पर्सन के साथ इनफ प्यार नहीं दिया है. 5 मिनट बैठो, उसको और प्यार दो, दैट्स इट. फोन करने की भी जरूरत नहीं है, दिल में प्यार दो, वो पहुंचेगा. और जब नेचुरली बाकी एक्शंस भी आए, देन डू दैट, फ्रॉम दैट भाव, फ्रॉम दैट अबंडेंस माइंडसेट. यस कुणाल. थैंक कुणाल, सॉरी, वन सेका, बिना मासी गिल्ट के घोड़े से उतर जाओ. हाँ. जो हुआ यू। अच्छा हुआ. अभी जैसे बेना मासी ने बोला, और भावना ने जैसे बोला कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एंड जो होगा वो अच्छा ही होगा। इससे कुछ याद आया मुझे, हाउ दिस सेशन स्टार्टेड। कुछ महीने पहले भावना को जाना था, बोला कि मैं तो अभी जा रही हूँ, मेरे को जाना है ईशा, कुछ दिनों के लिए, फुल रेडी। अगर आपको पता हो ये सेशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो मुझे थोड़ा बैकएक हो गया। एंड भावना मेरे साथ फिर थोड़े सेशंस में फिजियोथेरेपी के सेशंस चला करती थी, तो शी स्टार्टेड स्टिकिंग अराउंड।
तो हमने थोड़ा टाइम आराम से निकाल के जाते थे फिजियोथेरेपी के यहाँ पे। एंड इसी बहाने भावना ने अपना लैंडमार्क का किया। एंड आस्ते आस्ते जस्ट क्लिक्ड विद हर कि वी हैव लैंडेड हियर, कि हम यहाँ पे बुक रीडिंग हम सब कर पा रहे हैं। अगर मैं अपने आप को पूरा टाइम कोसता रहूं, अरे मेरे वजह से भावना नहीं गई, अरे ये नहीं हुई, कोई भी, जैसे भावना ने बोला कि वी डोंट नो व्हाट वी आर डायरेक्टेड टू, हमें पता नहीं है कि हमें शायद भगवान कोई ऐसे दिशा में लेके जा रहा है, शायद हमारा भी उस चीज पे हमारी सोच ही नहीं है, व्हाट वी आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग हिज पाथ। मतलब वो क्या रास्ते पे लेके जा रहे हैं हमें नहीं समझ रहा है, हमने कुछ मांगा है। भावना ने क्या मांगा, मुझे खुशी चाहिए, तो उसको वो बुक रीडिंग मिल गई। उसको वो बुक मिल गई, वो दिन में 2 बार भी पढ़ती है, उसे वही एक्साइटमेंट मिलती है। एंड मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। सो सो एट द सेम टाइम, या हम शायद समझ नहीं पाते लॉट ऑफ टाइम्स कि भगवान हमसे क्या करा रहा है, क्या हो रहा है, हमने क्या मांगा है, उसका रास्ता नहीं समझ पा रहे। हमने क्या मांगा है हमें पता है, शायद अंदर ही अंदर हमें पता है, बट एट द सेम टाइम वो रास्ता क्या है हम उसको क्वेश्चन करते हैं। सो आई थिंक मुझे सो लगता है बुक रीडिंग के बाद हम लोग है ना कुणाल भावना पे एक मूवी बना सकते हैं। आई एम रेडी टू डायरेक्ट। आई वांटेड टू शेयर दिस कि I हम don't want that. आई वांटेड टू शेयर दिस कि हमें लॉट ऑफ टाइम्स रास्ता नहीं पता होता है, हम रास्ते को क्वेश्चन करते हैं। हम हमारे हमें हमने क्या दिल से कोई चीज ली है, वो चीज हमें पता रहती है, बट हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते कि हमने वो चीज को की है। सो हाँ, आपने जो आपके साथ जो भी हो भी रहा है, आई थिंक सो वो चीज खुशी से एक्सेप्ट करते हुए चले, दिस इज द पाथ, मे बी दिस इज द समथिंग विच मे बी यू हैव विश्ड फॉर। सो आपकी विशेष जो है, इंटेंशंस जो है, वो बहुत ही क्लीन स्वभाव की होने चाहिए, कि आपने मे बी अगर गाड़ी मांगी है तो आपकी इच्छा से मांगी है। सो मे बी आप उस चीज को 1000 टाइम्स मोर एंजॉय कर सकते हो। मे बी समटाइम्स अगर आप डिफिकल्ट पाथ बोले या इजी पाथ बोले, वो अपनी चॉइस है। What Gaurav had said कि प्यार दो और छोड़ दो, that छोड़ दो is the most important, because universe का काम है तुम्हारे तक पहुंचाना, and it will bring circumstances and events in our life to do that, so छोड़ना, like I remember last 6 महीने में मैंने 50 सोलो ट्रिप्स ट्रैवल किए, लाइक हर 5 दिन में, मैं कुणाल मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, बट इट जस्ट वोंट हैपन, इट जस्ट वोंट हैपन, सो या लाइफ, अगर हम लाइफ के क्या बोलते हैं क्लूज सुनने लगे, इट विल ओपन अप मोर ब्यूटिफुली, मोर ब्यूटिफुली। थैंक यू कुणाल फॉर शेयरिंग। There is only yes for law of attraction. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Don't say no to the things you don't love because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you're feeling bad about them. You're giving bad feelings, and you will receive those feelings back as negative circumstances in your life. हम सब ने बहुत चीजों को ना बोला है और आज वो हमारे लाइफ में, किसी को डाउट है ये चीज पे? ऑलराइट, ये आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। या You can't say no to anything because when you say no, I don't want that, you are saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, they're always late, it's so noisy in here, the driver is a lunatic. I have been on hold for so long. You're saying yes to these things and you are including more of them in your life. कहीं भी जजमेंट दो, वो हमारे लाइफ में स्टिक 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 लाइक अ ग्लू हमारे साथ साथ चलेगा। Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling because they are fine as they are, but they have no place in your life. See no evil, hear no evil, speak no evil. हमने तो गांधी जी से सुना है, बुरा नहीं देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, सो हियर somebody else maxim, thank you for saying that, but all these people जिन्होंने अपने लाइफ में इंटरनली एंड एक्सटर्नली कुछ सब्सटेंशियल किया है, they knew these law and they were working with these laws, and that's why they could create the kind of impact that they did. So लाइफ में हर चीज है, हर चीज को जाके मुझे फिक्स नहीं करना है, हर चीज को जाके, इवन विद आवर किड्स, you know because till the time you are human you will have yin and yang. Now whatever you will water will grow. अगर बच्चे में 10 चीज
सही है और 4 नहीं है, अगर हम वो 4 को वाटर करें तो वो 4 को 40 होते हुए टाइम नहीं लगेगा। बट अगर हम 10 को वाटर करें तो वो 10 को 100 होते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। द ग्रास इज ग्रीनर वेर यू वाटर। Anything will grow wherever we give attention. So many times, we hear this question, अरे इसका ये ठीक नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं इसके लिए क्या करूं। अभी जब तक हम अपना नेचर नहीं जानते, we can never really help anybody। हमारी हेल्प भी, there is this story, एक बहुत ही काइंड और लविंग मंकी था, बहुत ही लविंग। एंड वो एक बार पेड़ पे बैठा था, एंड सडनली वहां पे एक नदी जा रही है। वो मंकी देख रहा है एक बेचारा कोई क्रीचर नदी से निकलने की कोशिश कर रहा है, नदी से जंप लगाने की कोशिश कर रहा है, डूब रहा है, तो ही इज सो काइंड कि इज लाइक मैं उसको बचा लूंगा, मैं उसको बचा लूंगा। तो बहुत मेहनत से वो पेड़ के एंड तक जाके, लाइक कैसे तो वो क्रीचर उसके नीचे आता है, तो बहुत रिस्की मेहनत से उसको उठा के नदी के बाहर वो फिश को रख देता है। और वो फिश स्टार्टिंग में तो थोड़ा डरती है, थोड़ा वो करती है, और फिर शांति से सो जाती है। और वो मंकी बहुत खुश होके चला जाता है कि आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया। सो समटाइम्स जब हम अपना नेचर नहीं जानते, जब हम लाइफ का नेचर नहीं जानते, हमारी लाइफ मंकी फिश को बचाने जा रहा है वैसी हेल्प होती है। वो समवेयर हमारे अगेन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को फीड करती है। मंकी प्रोबेबली इन हिज काइंडनेस डिड के फिश पानी में डूब रही है, उसने एक स्टोरी बनाई। वर्सेस फिश की स्टोरी है, अरे वो तो मजे से गोते लगा रही है, वो तो मजे से जंप कर रही है, शी इज लिविंग हर लाइफ। सो इन जब हम अवेयर नहीं होते, तब अननोइंगली हमारी मदद भी goes against somebody। So only thing we can do here is we just give love for what is working। That will be enough to transform anything and everything। सो बिफोर गोइंग, किसी को फिक्सिंग की जरूरत नहीं है, लाइफ हर जन को उनके लिए जो जरूरी है वो दे रही है। अगर हम वहां पे एक प्रेजेंस बन के रहे, हम एक लविंग प्रेजेंस बन के रहे, दे कैन कम टू अस फॉर व्हाट वी नीड। वर्सेस अगर हम रोज जाके तू ठीक नहीं है करे, वो डूब रहा है, हम उसको और बस डुबा रहे हैं। सो द चॉइस इज ऑलवेज आवर्स। सो व्हाट, अगर हम लविंग प्रेजेंस रहेंगे, दे कैन कम टू अस एंड वी विल हैव समथिंग हीलिंग टू गिव देन मोर ऑफ एंजाइटी। सो यस, लाइफ में हर कैटलॉग में हर चीज है। by simply not focusing on what we want and focusing on what we want, we will bring that to us। so बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। and on that we end। we have last 2-3 minutes। बेनामासी, आपका कल का शेयरिंग भी रह गया था। if you have something to share, or this place is open for next 5-6 minutes, 5-8 minutes, we'll take some shares if there are any, and then we end with a song। we are close to 10:30, so those who need to leave, we get it, and thank you all once again for being here, for being part of this journey, and we are open to your input, suggestions, stories, and your presence, of course। thank you all, thank you all for being here and for making this happen। yes, yeah। ना तो कुछ है, ये जो अपना फीलिंग का जो चैप्टर चालू है ना, तो वही इस जी भी वही करा रहे हैं। हाँ, तो अभी आज आज थोड़ा मेरा ब्रेकडाउन क्या तबीयत में, तो आज लाइव नहीं बैठी, अभी सुने बोल तो 2 दिन उसने रोज का रोज जो हम लोग ये करते हैं, जो काम करते हैं, उसके ऊपर पहले बोला करके कि उसके ऊपर फीलिंग डालो। तो और वही चैप्टर अपना भी वही चैप्टर, तो मेरे को दोनों जगह वही, तो थोड़ा और क्लियरिटी आया मेरा लाइफ में कि हाँ, मेरे को अपना अंदर जो फीलिंग है वो किस तरह से बाहर किस तरह से करने का है। वो एक मेरा बड़ा शेयरिंग, मतलब ये ज्यादा ओपन हुई मैं कि फील कैसा करने का है, कि रोज का काम में, कि अभी रोटी भी बना रही है समझो, तो उसमें भी फीलिंग कैसा डालने का। तो वो बहुत डीपली सिखाया है, और अभी भी चालू है। आज का चैप्टर में नहीं बैठी, अभी करेगी। तो वो दोनों दोनों साइड से मेरे को वही मिल रहा है जो मेरे को चाहिए, और जो अभी मेरे को बहुत जरूरत है वही चाहिए, तो वही मिल रहा है। वाह वाह वाह, आप बताओ कैसे करना है, हम भी करते हैं। उसने ना एक टू डू लिस्ट बनाया हम लोग का, रोज सुबह पहले टू डू लिस्ट की, हम लोग रोज रोज का क्या काम करने का है, बस चाय भी पीने का है। तो पहले वो बनाया, और फिर उसके ऊपर गए कि वाह, बहुत आउटकम लगाने का।
और उसको थैंक यू बोलने का करके, और फिर चाय पी के हम लोग को क्या लगा, अच्छा लगा कि बहुत वाव लगा, तो वो एक शब्द डालने का, वाव, कि खुशी हुआ, तो मैंने हैप्पी डाला कि मेरे को ये काम करने में बहुत खुशी हो रहा है, तो थैंक यू करके कि ये चाय पी के मेरे को बहुत खुशी हुई। अभी चाय पी नहीं है क्योंकि ये 5-6 बजे का सेट है, अभी चाय पी नहीं है, अभी चाय पीने की है कि अभी वाह, ये करने का है, तो उसके पहले ही उसके ऊपर अपना फीलिंग डालते हैं। तो जितना जितना अपने को पहले ये लिखने का करके, पहले अपना टू डू लिस्ट बनाने का, और फिर वापस उसको अपने को बोलने का करके कि नहीं, ये इसमें मेरे को बहुत खुशी हुई ये करके, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, तो वो लिखा थे। और क्या फिर बात। लास्ट में दूसरे दिन हम लोग को शाम को चेक करने का, दूसरे दिन कि हम लोग ने क्या क्या क्या, ठीक है सब काम नहीं होते हैं, समझो कि कुछ आ गया तो नहीं, तो उसके ऊपर रॉन्ग मार्क देने का कि ये काम नहीं हुआ, फिर सोचने का करके 2 मिनट उसके बाद कि ये क्यों काम नहीं हुआ, मतलब मेरा ही एफर्ट उधर कम था, मेरा ही फीलिंग उधर कम का, इसके लिए नहीं हुआ। तो वो ये अपने को क्लियरिटी के, हाँ इसमें मेरे को और ज्यादा फोकस लगाने का है, उसको ज्यादा प्यार देने का है, तो वो काम होएगा, वो मेरे लिए मेरी वजह से ही नहीं हुआ, तो वो कराते हैं। तो अभी 50% थोड़ी आई, अभी 50% बाकी है अभी आने का, तो थोड़ा दिन में क्या हो बात है। जाएगा। थैंक और यू फॉर शेयरिंग। हाँ। हाँ, और एक उसने ये निकाला, एक 21 दिन का कोर्स है, मगर मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है, वो मैंने लिखा है करके कि अगर आगे भी जाके मैं करेगी, और ये आप अभी सिर्फ हो आज जाएगी। से बोलो कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैंने हाँ, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन अरे कर आगे लिया। क्यों, ज्वाइन कर हाँ, लिया, अब ज्वाइन जब कर होगा वो सही आएगा टाइम पे, तो हाँ, मैंने ज्वाइन कर लिया। हाँ, वो आज लिख लेती है, और और फिर वो एक बार, फील करो, लिखने से ज्यादा इस हाँ, फीलिंग। हाँ, क्योंकि रोज नजर के सामने रहेगी ना, ऐसा चिट्ठी बनाएगी और वो चिपका देगी, तो वो नजर के सामने रहेगी ना, तो हर बार वही आएगी ना। तो वो परफेक्ट। आइडिया देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि हाँ ये मैं करती है। और ये कोर्स भी बहुत बहुत अमेजिंग कोर्स है, जिस तरह से हम लोग को समझाया ना, बहुत अमेजिंग कोर्स है कि बहुत अपना लाइफ में ओपनिंग होएगा। मगर ये हम लोग का तीन आपको दिन के चाहिए लिए, तो आप ग्रुप में शेयर कर दो, वो जो उनका 21 days कोर्स है, अगर आप ठीक उसके है। बारे में, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन ना, हाँ, ऑलवेज न्यू पर्सपेक्टिव्स आर गुड, तो आप शेयर ठीक कर है। दो। हाँ, और अगर समझो कि मैंने ना सेकंड डे का मैं डाल देगी, तो उसमें क्या क्या वो कोर्स में सिखाते हैं, तो सेकंड डे में सब इस जी ने बताया है कि क्या क्या इसमें है डिटेल में, कि हम लोग किस तरह से सिखाएंगे, वो भी मैं सेकंड डे भी डाल देगी, और यूट्यूब पे भी है, और मैं भी परफेक्ट। डाल देगी, और इसका भी डाल देगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत थैंक मस्त है, 3 दिन का भी यूट्यूब के है, कभी किसी को भी टाइम मिला तो देख सकते हैं, मगर वो भी बहुत मस्त है। And these guys are pros. They really know what they are doing. So those who would like to join, deepen this journey, please do. Please do. Perfect. Thank you, Benamasi, for sharing. And thank you for saying कि हर चीज को इंटेंशन से करो, करने से पहले वो इंटेंशन डालो, वो क्रिएशन डालो, और उसका जो बेस्ट आउटकम है वो सोच के फिर ही वो चीज करो। एंड थैंक यू अगेन फॉर ब्रिंगिंग इट। और आज हमने साइलेंस लिया इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन विद दैट इंटेंशन कि हमें यहाँ क्या फील करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द सेशंस विद साइलेंस। So, thank you for sharing and opening your heart and your learnings. And thank you all once again for being here. It's 10:35. So we can, if anybody has anything to share, any new members also or anybody, we can take probably a minute's sharing or else. Ask Papa to share. Is he still there? Yeah, I can see Uncle. Uncle, namaste. Not there. I don't know if he's talking on mute. ओके, जस्ट वन थिंग आई वांट टू ऐड, जो बेनामासी ने आज शेयर किया, टू डू लिस्ट वाली बात। कल अहमदाबाद में बहुत, अभी भी रादर कल से बहुत बारिश है, स्पेशली हमारी एरिया में। जो नॉर्मली हम हर दिन गाड़ी लेके आराम से अपनी मस्त गाड़ी में बैठ के सूखे साखे मस्त जाते थे अपने बच्चों को लेने बस स्टॉप पे,
कल वही रास्ते कमर के जितना पानी था, गाड़ी आगे जाए नहीं, कोई गाड़ी दूसरी भी, हम इतना बुरी तरह फंसे हुए थे कि कोई दूसरी भी गाड़ी बाजू में से गुजरे तो उसकी पूरी वेव्स हमारी गाड़ी को हिला रहे थे बोट की तरह। इट वाज वेरी स्कैरी। एंड वो उधर से वैसे गाड़ी में से मैं उतर गई, पानी कमर के जितना डीप पानी में मैं चलकर गई, सागर को बोला आप वीर को लेके घर जाओ, और मैं वेद को बस स्टॉप पे पिकअप करने गई। पहली बार मैंने ऐसा वो एडवेंचर, थोड़ा अकेले, फिर उसके बाद बीच में कोई फ्रेंड मिल गया, एक फेलो पेरेंट, तो हम लोग बोले थे चलो जय माता दी करते करते हम चलते चलते गए। बस स्टॉप पे जो बैठने की सीट होती है ना, उसके ऊपर हम खड़े हैं, हमारे पैरों तक पानी है, गाड़ियां आ रही है, पूरी वेव्स जा रही है। कैसे कैसे हम पहुंचे, बस स्टॉप पे पहुंच गए जहाँ पे बच्चे को पिकअप करना था, काफी वॉक था, वहां पहुंच तो गए। वो मन में आ रहा था कि हम तो इतना मुश्किल से पहुंचे हैं, डर डर के पूरे गटर के पानी में गीले होके, हमारे बच्चे कैसे जाएंगे वापस। तो किसी एक फादर ने बोला जैसे हम आए हैं वैसे ही वो जाएंगे। लाइक किसे हम सोचते हैं अरे मैंने तो कर लिया, मैं अपने बच्चों को कैसे लेके जाऊंगी, वो भी इंसान का ही बच्चा है, तुम चले गए तो वो भी चलाएगा। एंड सच में वैसा ही हुआ कि सागर की गाड़ी और पीछे थी, वो दूसरे रास्ते से भी घूम के नहीं आ पाए। वहां बस स्टॉप से हम, मैंने वेद को भी वॉक कराया, बेचारे के छाती तक पानी था। तो पहले मैंने उसको गोदी में उठाया, तो एक फादर ने मुझे बोला, दूसरे मॉम पेरेंट्स भी थे काफी, तो उन्होंने बोला कि नहीं गोदी में नहीं उठाओ, क्योंकि हमें नीचे रास्ता नहीं पता, खड्डा आएगा ना तो गोदी में वो भी पानी में डूबेगा, आप भी पानी में डूबोगे। मेक हिम वॉक। उसकी बेटी थोड़ी वेद से टॉल थी, वेद वॉज द यंगेस्ट टू वॉक इन दैट वाटर। बट उसने भी वो एडवेंचर कर लिया। मतलब हम डरते हैं लाइफ में चीज़ों से, डर खाली हमारे माइंड में है, सब चीज़ें हो जाती है। इट्स जस्ट वी हैव टू पुट, एंड येस्टरडे वाज अ गुड टाइम कि वो टू डू लिस्ट वाली बात, आई गॉट डाइवर्टेड, कि हर दिन मैं अपने बच्चे को बस स्टॉप से पिकअप करती हूँ, गाड़ी में आराम से जाती हूँ, कभी ड्राइवर होता है कभी खुद ड्राइव करके जाती हूँ। एक बार गाड़ी भी नहीं थी, दौड़ दौड़ के भी मैं पहुंच गई, पर कम से कम रास्ता तो था। कल रास्ता ही नहीं था। कल हर एक चीज जो एवरीडे मिलती है, कल नहीं मिली, उसकी और ग्रैटिट्यूड बढ़ गई। थैंक यू गॉड, रोज सूखे सूखे हम बच्चों को उठाते हैं, आज गीले गीले भी उठा लिया, पर एटलीस्ट हम सब सेफ है। तो बहुत बहुत कल वॉज एन इमेंस डे ऑफ ग्रैटिट्यूड। Lovely. Thank you for sharing. And it is this contrast that makes us aware कि क्या रोज हम granted ले रहे हैं. करेक्ट, वो Thank गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स वाली बात थी, राइट? दोज बैड डेज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। you. Yeah. It's all serving the same purpose. Thank you all. Thank you all for sharing, opening your hearts, being here. See you tomorrow. And the song का intention is to just bask in good feelings. अभी dreams छोड़ दो, हमें dreams की तरफ देखना था, but now it's time to just let go. Fill our life, fill our days with gratitude, good feelings, love, and grace. Enjoy. Yes, Kunal.